So in the last class, we were discussing about the psychological pricing. We already completed our topic, right? Competitive pricing, that is already completed. In today's class, what we are going to understand, today we are going to complete product line pricing, then tender pricing, and the third one is price discrimination or differential pricing. What is the meaning of that? We're going to discuss about it. Before that, who is going to tell me about what is bundle pricing? Raise your hand. What is bundle pricing? Everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Every student. चलिए बताइए, who is going to tell me about bundle pricing? What is the meaning of that? Bundle pricing क्या है? Raise your hand. Yes, Vaishnavi. Yes, ma'am. It is a marketing strategy for offering set of goods and services at a cheaper cost, as they want to sell more and more products at a single time. Good. Anyone else? Good, Vaishnavi. Anyone else who want to tell me what is bundle pricing? What are the advantages of it? Yes, Ruchi. First of all, turn on your camera. Camera turn on करके फिर आंसर देना है बेटा. चलिए रुचि बताइए. बंडल प्राइसिंग इज अ बिजनेस स्टडी. और ये मैम एक कंपनीज ग्रुप सेवरल प्रोडक्ट्स टुगेदर इन अ बंडल एंड सेल देम एट अ सिंगल प्राइस. बंडल प्राइसिंग. गुड. ओके. और मैम हाँ बताइए. एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज में इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और अट्रैक्ट न्यू काइंड ऑफ बायर्स और डिक्रीज मार्केटिंग कॉस्ट और आइडल एंड एग्जिस्टिंग स्टॉक. और अगर हम उसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लोअर कॉस्ट मतलब लोअर एट अ प्रॉफिट, मतलब इसमें लोअर रहता है. और मैम इतना ही पता था. और काउजेस इज अ बैरियर टू एंट्री. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. So next question is, what is competitive pricing? Who is going to tell me about it? Competitive pricing. What is competitive pricing? Competitive pricing क्या है? कौन बताएगा? Yes, Ankit. Ma'am, competitive pricing is a marketing strategy where the manufacturers set the price according to their competitors. Ma'am, basically it requires a thorough studies that what kind of pricing strategy does the competitors are adopting. So ma'am, we analyze the market, जैसे कि वो किस तरह का मार्केट स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट किए तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग वो अपना भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं मैम. ओके, गुड. ठीक है. सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गया और आपका बंडल प्राइसिंग हो गया. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग? Raise your hand. Psychological pricing. Psychological pricing. कौन बताएगा? Raise your hand. चलिए, रिया कुमारी, रोल नंबर 19, बताइए जरा क्या होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग? I don't know, ma'am. ओके. दुर्गेश, रोल नंबर 8. यस मैम. बताइए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है? कैमरा टर्न ऑन कीजिए. यस मैम. Psychological pricing is that type of pricing when is setting below the whole numbers. If you took example of a product, the price is 499, then customer sends the mine according to the price is 400, not 500. So this is price list type of price is the psychological pricing. They set the price on the customer mind. ओके, ठीक है. गुड. नाउ रिया, रोल नंबर 19. यस मैम. चलिए बताइए, समझ आया? यस मैम. क्या होता है बताइए? उसका आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा था. Riya, I don't want any kind of explanation. What I asked that you able to understand that what he said? No, ma'am. Psychological pricing क्या होता है? मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा इसका. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एक तरीके का स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो कंपनी अडॉप्ट करता है, खास करके जो ब्रांडेड कंपनीज हैं या फिर बड़े बड़े जो कंपनीज है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी
Why they are using that type of strategy? Because they want to make the position of their product in the mind of the customer. ठीक है, और वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऑड नंबर की तरह सेट करते हैं. जैसे यू ऑल आर एबल टू सी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लाइक 449, 999. तो बेसिकली अगर कस्टमर के माइंड को देखा जाए तो अगर हम भी कभी शॉपिंग हम लोग कोई भी जाते हैं करने, तो व्हाट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, बिकॉज पीपल आर प्राइस सेंसिटिव. तो जब हम प्राइस देखते हैं, जब हम 999 देख रहे हैं, so we are not thinking that we are only going to focus on this first number and that is 9. So we are not thinking that it is nearby 1000, but sometimes we are thinking, oh, it's around 900, right? So that's why we are going to purchase that product. This is the first concept. Second, what we are able to see that sometimes the price is written like this, 499, and this is cut like this. And the price जो होता है वो नीचे लिखा होता है only 99. So this is also the part of the psychological pricing where we are able to analyze that the real cost of the product is 499. इसका मतलब बहुत महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन हमें मिल कितने में रहा है? सिर्फ only in 99. So that is the one of the reason. ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपके सेल्स को इंक्रीज कर रहा है. दिस इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. इसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ गेम खेलना. कौन करता है? ये करती है कंपनी. ठीक है, सो दिस इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. समझ में आया रिया? यस मैम. बताइए क्या होता है मैम. जिसमें से आप बता रहे थे ना, जैसे हम लोग जब ब्रांड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी देते 9999, तो सबसे पहले इसका ध्यान जाता है कि मतलब वो 1000 नहीं 999. और जैसे आप बताएं मैम अभी की साइकोलॉजिकल 499, उसको कट करके मतलब 99, तो वो मतलब उस दाम पे था, वो कट करके सस्ता में 99 कर दिया गया. उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट. सो बेसिकली हियर दे आर प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द पीपल. ठीक है, बिकॉज हमें हमेशा क्या होता है कि सस्ते प्रोडक्ट की तरफ हमारा जो ध्यान कंसर्न ज्यादा होता है. जब हमें बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस में मिलता है तो वी आर मोर सेटिस्फाइड, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, for increasing the sales and for the customer satisfaction and loyalty, the companies are using such kind of pricing strategy. Okay, next question. Bundle pricing हो गया. Cost plus pricing कौन बताएगा? चलिए, cost plus pricing कौन बताएगा मुझे? Turn on your camera everyone. Tell me, what is cost plus pricing? Raise your hand. Cost plus pricing. रोल नंबर 10 445 नाना भारती. चलिए बताइए व्हाट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल. मैम इसमें होता है क्या, मतलब जो हम लोग जो जैसे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें हम उसका जो मतलब जो उसका जो भी रेट होगा उसको हम फिक्स करने के लिए कॉस्ट प्राइसिंग को यूज करते हैं मैम. नो, आपने जो भी बताया हो लेकिन आपने इलैबोरेशन अच्छे से नहीं किया है. कौन बताएगा मुझे क्लियरली इसके बारे में? एटलीस्ट यू ट्राइड. गुड. ओके मैम, जैसे हम लाइक कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें उसका लेबर कॉस्ट क्या होगा, मार्जिन कॉस्ट क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, मनी क्या होगा, उसको मतलब मैम पूरा रिगार्डिंग निकाल के एक फिक्स प्राइस निकालते हैं कि प्रोडक्ट का, वो होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ठीक है, गुड. यस, रोल नंबर 6 संदीप. चलिए बताइए. टर्न ऑन योर कैमरा. सारे बच्चों को मैं इतनी देर से कह रही हूँ टर्न ऑन योर कैमरा. यू ऑल आर नॉट एबल टू गेट माय वर्ड्स और व्हाट? चलिए बताइए संदीप. रोल नंबर 6. यस मैम. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. कैमरा टर्न ऑन करो. आंसर देने से पहले कैमरा टर्न ऑन करो. टर्न ऑन योर कैमरा. यस मैम. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो कॉस्ट लगता है उसके ऊपर हम अपना कुछ प्रॉफिट, कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हैं, वो होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. यस मैम. ओके, सो डू यू वांट व्हाइट बोर्ड शेयर में अलाउ करो? बताओगे कैसे होता है ऐड? मैम जैसे एग्जांपल में कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हमको कॉस्ट पर 100 रुपीज और उसपे हम 20% प्रॉफिट चाहते हैं, तो 20% प्रॉफिट ऐड करके इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% होगा मैम 20, यानी 120 में सेल कर देंगे. ठीक है मैम. 20 होता है. हाँ ठीक है. ओके, सो आई गेस ऑल टाइप ऑफ प्राइसिंग जितना भी था लगभग
समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग. तो प्राइस लाइनिंग, देखो आप लोग को पता है प्रोडक्ट लाइनिंग के बारे में मैंने बताया था कि आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में की थी, याद होगा आप लोगों को, याद है ना? Yes, प्रोडक्ट में क्या था. तो प्रोडक्ट लाइनिंग जो है ये एक रिटेल मार्केटिंग का जो एक टेक्निक है. यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, जो प्रोडक्ट का जो रेंज होता है, कंपनी क्या करती है कि वो एक कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स को ऐड करती जाती है उसका प्राइस जो है वैरी करता रहता है. जैसे एग्जांपल में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दे आर सेलिंग आपका डव एंड दे आर आल्सो सेलिंग मान लीजिए लक्स. तो यहाँ पर जो लक्स है उसका प्राइस वी आर एबल टू सी दैट इज वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट, राइट? बट डव इज एक्सपेंसिव सोप. तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, where we are targeting all the potential customers. What does it mean? कि we all know that Dove is expensive soap, तो it most probably बहुत सारे लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स जो लो स्टेटस हैं, जिनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, they are not going to purchase that expensive soap. So what the company is doing, they are basically introducing those soap as well whose cost is very low. So that is a product line pricing where we are introducing more and more products and our customers, our target customers will be increased by that. यानी कि एक प्राइस लेकर आए, 5 रुपए का सोप किया ऑर्डर, मतलब 5 रुपीज का सोप मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, तो लो स्टेटस पीपल भी ज्वाइन हो जाएंगे. 100 रुपीज का अगर सोप इंट्रोड्यूस किया तो प्रीमियम कंज्यूमर ज्वाइन हो जाएंगे, प्रीमियम कस्टमर्स हमारे बन जाएंगे. सो दिस इज नोन एज द प्राइस लाइनिंग टेक्निक. ठीक है, या प्रोडक्ट लाइनिंग प्राइसिंग टेक्निक कह लीजिए या प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कह लीजिए इसको. ठीक है, तो यहाँ पर परचेजिंग कैपेसिटी के अनुसार जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो इंट्रोड्यूस करती हैं आपके प्रोडक्ट को. ठीक है, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से सोप को या किसी को भी परचेज करेगा. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ इट. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब हम अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. तुम लोग को याद होगा प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग तुम लोग को मैंने करवाया था, अपवर्ड स्ट्रेचिंग एंड डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, याद है? यस मैम. उसमें मैंने 2 चीज कराया था कि डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उससे लो कॉस्ट में जब हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं. जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो एक कैटेगरी जो सोप है उसमें ऑलरेडी जब डव है तो डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का मतलब है व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग लाइफबॉय एट लो कॉस्ट. ठीक है, तो दैट इज डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग. अपवर्ड स्ट्रेचिंग क्या होगा, व्हेन वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ऑफ द हाई कॉस्ट, so that is upward stretching. The same situation is here. Basically वो सेम टेक्निक है, बस यहाँ प्राइसिंग के सेंस में बोला जा रहा है कि जब हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हम अपने अलग अलग जो हम सेट करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस इन द सेम कैटेगरी फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट टू target a mass customers or target so many customers. ठीक है, so that is known as product line pricing. जब हम अपने प्राइसिंग टेक्निक से लगभग हर एक कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे एग्जांपल में जो गुची है दैट इज अ एक्सक्लूसिव ब्रांड. ठीक है, फॉर एक्सेसरीज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑडी, that is obviously that only targeting the premium people because the price of that product is high, right? But in the case of this product line pricing, we are targeting almost every category of the people, and this is very much common in the convenience product because soap हो गया, oil हो गया, ये सारी वैसी चीजें हैं everyone is purchasing it, right? Salt हो गया, sugar हो गया, ये तो सब लोग खरीदते हैं ना. तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास मास कस्टमर्स हैं इसको यूटिलाइज करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस दे आर शिफ्टिंग देमसेल्व्स टुवर्ड द अनदर कंपनी एंड ब्रांड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड. So basically for increasing the purchasing capacity of the people, not increasing but for affordability, मतलब वो afford कर पाए, purchase कर पाए, for that we are using such kind of pricing technique. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? अब जैसे सैमसंग है, अब सैमसंग का जो हेड मॉडल आता है या फिर नोट आता है वो बहुत एक्सपेंसिव आता है. दैट इज अराउंड 50-60,000 रुपीज, इस तरीके से उसका कॉस्ट है. अब हर एक कोई परचेज कर लेगा क्या उसको? फोन को हर एक कोई परचेज तो नहीं कर पाएगा. तो ऐसे केस में आप लोगों ने सुना होगा कि आपका जो सैमसंग का ए मॉडल जो है, ए सीरीज मॉडल है, वो सारे लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स बनाता है. So they are targeting those customers as well whose affordability is not very high, their purchasing power is not very high. So that is known as the product line pricing. Clear हो गया सबको? What is product line pricing? समझ में आया सबको?
एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो अगर एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि वाटर प्यूरिफायर्स हो गए या सैमसंग हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, वो भी ये चीज बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती है, क्योंकि अगर वो कोई महंगा मॉडल निकालती है तो ऐसे केस में बहुत सारे कस्टमर्स तो अपने आप आउट हो जाते हैं उस कैटेगरी से, तो फिर वो सस्ते प्रोडक्ट भी निकालना शुरू करती है, थोड़ा सा कम फीचर्स देकर, बट एटलीस्ट यूटिलिटी होती है। तो इस तरीके से व्हाट बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर टारगेटिंग दूस कस्टमर्स एज वेल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाई या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, राइट? क्लियर हो गया, समझ में आया? अब तुम लोग को मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक ऑनलाइन वेबसाइट है, मान लीजिए। यस दुर्गेश? मैम इससे तो एक्सेस स्टॉक पे भी फर्क पड़ेगा ना, अगर कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है सेम क्वालिटी के साथ, तो जो ओल्ड स्टॉक में जो प्रोडक्ट था वही सेम क्वालिटी के साथ, तो वो प्रोडक्ट तो मैम एक्सेस वो तो स्टॉक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फिर कस्टमर तो नए प्रोडक्ट। ये बात सच है, ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है, बट व्हाट आई टोल्ड यू कि जरूरी नहीं है कि जो आप कभी भी जो प्रीमियम प्रोडक्ट में क्वालिटी दे रहे हैं वो आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है? बट येस, इट इज नॉट वेरी, दैट इज नॉट इन वेरी डिटोरिएटेड क्वालिटी, बहुत ही खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट वो प्रोवाइड नहीं करेगा, बट इसमें प्रोमिसेस कम हो जाएंगे, आपके पूरे फीचर्स कम हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब उसका जो यूटिलिटी, उसका जो फीचर्स है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तुम ए सीरीज का फोन उठा के देख लो सैमसंग का, और तुम हेज उठा के देखो, तुमको कैमरा में ही डिफरेंस दिखेगा सबसे पहला। आ रही बात समझ में? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आपको क्वालिटी बिल्कुल सेम देगा, वो तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो प्राइस सेंसिटिव होंगे, पहले महंगा प्रोडक्ट ले रहे होंगे, लेकिन उनको लगा ये भी बहुत अच्छा है, तो चलो ये सस्ते में काम चल जाएगा। So that will be happen. What I told you, it's not about that they are, whatever they are introducing, that is of same quality. No, exactly no. If they are basically introducing the low price product, the quality is not like whatever they are selling in the premium price. ठीक है? एंड जस्ट वाइस वर्सा केस कर दो, जो भी अगर वो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट सेल करे, अगर उन्होंने हाई प्राइस कर दिया उस प्रोडक्ट का, तो उसका क्वालिटी ऑब्वियसली बेहतर होगा, बेटर होगा। आई बात समझ में दुर्गेश? दुर्गेश क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। ओके, एंड एक और भी चीज है कि आपका ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं होता है, कस्टमर की एक और भी इसका पॉइंट है कि व्हाई दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज टू इंक्रीज द, बोल सकते हैं ना, इंक्रीज द ऑप्शंस को भी इंक्रीज करना उनका एक एम और गोल होता है। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसमें मल्टीपल सोप्स हैं। क्यों मल्टीपल सोप है? एक भी रहता तो काम चलता ना, ऐसा तो नहीं है कि सब सोप का तो यूटिलाइजेशन एक ही है, दैट इज फॉर बाथिंग पर्पस, राइट? तो एक सोप से भी काम चलता। देन व्हाई दे इंट्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट? द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इंक्रीज करने के लिए। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज टू कवर ऑल दोस टारगेट कस्टमर्स हु वाज नॉट potential customer for them earlier because of the pricing system of the company, right? And second thing कि दुर्गेश एक और चीज आप लोग याद, मतलब दुर्गेश को मैंने ये बोला इसलिए क्योंकि because he said that line, तो एक लाइन प्रूनिंग का एक वर्ड होता है। लाइन प्रूनिंग क्या होता है? जब हमारा जो भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा, कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं सेल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप कर देते हैं बनाना। So that is always done in the manufacturing companies as well, because for them profit is important. They don't want to increase their stock and inventory. ठीक है, तो ये भी चीजें होती रहती हैं कि वो हमेशा एक, आप लोगों ने देखा होगा ना, सैमसंग के बहुत सारे मॉडल तो बंद हो चुके हैं या नहीं? बहुत सारे मॉडल्स वगैरह बंद हो गए। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट अब इसका मार्केट नहीं है, अब खत्म हो चुका है मार्केट, सो दे आर डूइंग दैट थिंग एज वेल। सो लाइन प्रूनिंग भी इनका चलता रहता है, डोंट वरी। चलिए एक एग्जाम्पल, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट XYZ which provides the coding course। अब एक मैं तुम लोगों को सर्विस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो वो प्रोडक्ट का, तो हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिया। अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है। आजकल तुम लोग को पता है कि ऑनलाइन कोर्सेज कितना ज्यादा डिमांड में है ना। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि आजकल ऑनलाइन कोर्स कितना ज्यादा बेसिकली डिमांड में है। तो ऑनलाइन कोर्सेज, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ये सब होता रहता है। तो एक कंपनी है XYZ और उसका एक वेबसाइट, और वो ऑनलाइन जो है वो कोडिंग सिखाती है। कोडिंग समझते हो ना क्या होता है? कोडिंग पता है ना क्या होता है?
कोडिंग, हाँ ठीक है, तो ये कोडिंग सिखाती है, ये कंपनी जो है ये कोडिंग सिखा रही है अपने वेबसाइट पे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना कोर्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर एक कोई इस कोर्स को ले सके, हर एक कोई ये कोर्स कर सके। अब क्या है देखो इसमें, पहला इन्होंने इसको डिवाइड किया बेसिक, सेकंड है गोल्ड, थर्ड है प्लैटिनम। अब ये 3 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, जो बेसिक लेवल कोर्स है इसमें आपका लिमिटेड स्टडी मटेरियल है, लिमिटेड स्टडी मटेरियल है, ठीक है। और जो गोल्ड लेवल है इसमें आपका स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका प्लैटिनम में कि स्टडी मटेरियल भी है, एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेगा, और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के भी प्रोविजन मिलेंगे। तो ये है आपका एक तरीके से, आप समझ रहे होंगे ना कि ये किस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग सेट किया है। बेसिक है जिसमें लिमिटेड स्टडी मटेरियल है और नॉर्मल क्लासेस जो होती है वो मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा सारा, साथ साथ में एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेगा, और क्लास तो चलेगा ही चलेगा। प्लैटिनम में जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या देखा कि भाई आपको स्टडी मटेरियल पूरा, एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, और 1-2 प्रॉफिट इसमें और भी, और बेनिफिट आपको एडेड मिलेगा। तो हियर द पर्सन हु डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, व्हाट दैट पर्सन कैन डू, दे कैन टेक दैट बेसिक वन, और इसका कॉस्ट मान लीजिए 1000 रुपीज। द पर्सन हु वांट्स कि मुझे पूरा स्टडी मटेरियल प्रॉपर चाहिए और एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए, तो दैट पर्सन हैव टू पे 2000 रुपीज। आदित्य कुमार रोल नंबर, आदित्य कुमार, अब मुझे बताएगा संदीप, ये आदित्य कुमार कौन है बेटा? चलिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गोल्ड जो है वो गोल्ड का अगर उसको लेना है पैकेज, तो यहाँ पर दैट पर्सन हैव टू पे 2000 रुपीज। अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कस्टमर, देयर हैव 3 प्रोविजंस ऑफ टेकिंग पैकेज। जिसको बेसिक से काम चल जाएगा वो बेसिक ले लेगा, जिसको थोड़ा और चाहिए इलैबोरेटेड फॉर्म में वो गोल्ड ले लेगा, जिसको प्लैटिनम चाहिए, जिसको पूरा का पूरा इलैबोरेटेड फॉर्म में, एक्सट्रीम इलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए, वो प्लैटिनम ले ले। तो आप देख रहे होंगे ना कि जितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ रहा है, बेनिफिट और आपके फायदे उतने ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। हो रहे हैं ना, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट एटलीस्ट यू हैव अ ऑप्शन। अब लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है। यहाँ एक टर्म तो आता है अफोर्डेबिलिटी, तो जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है सिर्फ बेसिक, वो तो बेसिक ही करेगा। बट अगर मान लीजिए जो पर्सन तीनों अफोर्ड कर सकता है, वो क्या करेगा, वो चूज कर लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी इंक्रीज हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ को टारगेट कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। वो कस्टमर्स को यहाँ इग्नोर नहीं किया जा रहा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोर्स। हर एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है, राइट? आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ये टर्म क्लियर हो गया, व्हाट इज लाइन प्राइसिंग? यस मैम। यस। ओके, अब आप लोग OnePlus का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि OnePlus Pro और OnePlus 7 वाला भी एग्जाम्पल यू ऑल कैन टेक, ठीक है? तो आपका OnePlus एक नॉर्मल वर्जन जो आता है वो एक्सपेंसिव आता है, कभी नॉर्ड और प्रो ये जो आ रहे हैं थोड़े से सस्ते और कंपैरेटिवली लो प्राइस आ रहे हैं, ताकि वो उन लोगों को भी कवर कर रहे हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फोन परचेज नहीं कर सकता है। ट्रू, ठीक है? चलिए, so I guess this line pricing lining या फिर product line pricing, this is clear to all of you? सबको क्लियर हो गया ये? Everyone? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एडवांटेजेस क्या है आपका इसका प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इट प्रोवाइड द ऑप्शन। तो आप लोग लिखते चलिएगा सारे पॉइंट। इट प्रोवाइड ऑप्शंस टू द कंज्यूमर, it provide options to the consumers, it provide options to the consumer, यानी वैसे कस्टमर्स जो कि प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं बट उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से कई बार वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और वो फिर दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं। तो ये चीज यहाँ रुकेगा आपका, ठीक है? बिकॉज यू हैव ऑप्शन। आपको एक ही प्रोडक्ट जरूर परचेज करना होगा, लेकिन आप बेस्ट परचेज करना चाहते हैं कि नहीं? हम हमेशा
इसीलिए जब भी हम कोई क्लोथ या ड्रेस खरीदने भी जाते हैं तो हमें कोई प्रोडक्ट दिखाएगा तो वी आर नॉट रेडी कि हम एक ही प्रोडक्ट देखकर एक ही प्रोडक्ट में परचेज कर ले. नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? So here the options are increased. The fourth point is price lining provides options to the consumer. Now the second one is better quality. हाँ, ये जो बेटर क्वालिटी है थोड़ा सा समझिएगा. बेटर क्वालिटी तब है जब आपको ये महंगा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. जब आपको ये थोड़ा सा महंगा प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट और क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये आपको प्रोवाइड करेगी. ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसमें जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे. तुम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा ना, 5 लेवल होता है प्रोडक्ट का. टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट याद है ना? कोर, बेसिक. यस मैम, याद है. तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे कोर से हम लोग जब सबसे लास्ट पोटेंशियल तक बढ़ते जाते हैं, स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ता जाता है. लेकिन कोर प्रोडक्ट में जो होता है क्या होता है, बेसिक प्रोडक्ट होता है. जैसे फोन का बेसिक काम क्या है, कम्युनिकेशन, राइट? सो हियर द सेम थिंग इज कि लाइक जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होता चला जाएगा जब आप थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे. क्वालिटी जो है, फीचर जो है, दैट विल बी रिड्यूस व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द लो कॉस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट. आई बस समझ में पॉइंट क्लियर हुआ सबको? थर्ड लिखिए, इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी या इंक्रीज परचेजिंग रेट. ठीक है, इंक्रीज परचेजिंग रेट. परचेजिंग रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन. यहाँ पे परचेजिंग और अफोर्डेबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लो कॉस्ट में वो भी लोग प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहे हैं जो पहले परचेज नहीं कर सकते थे. ठीक है, बिकॉज नाउ दे हैव अ ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट. ठीक है, next one is it reduces the expenses of advertising. It reduces the expenses of marketing and advertising. लिखिएगा, marketing and advertising. अच्छा, अब यहाँ एक टर्म आता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो उस टाइप का प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया है ना. यानी आपने ऑलरेडी उस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में थे आपके. अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है जब डव लेकर आया उससे पहले मार्केट में ऑलरेडी लाइफबॉय अवेलेबल था ना, था कि नहीं? है ना? सो आप जो है ऑलरेडी ब्रांड जो है वो आपका सेट है. आपका वो कंपनी जो है, कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी जो नाम है, दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट. सो यू डोंट नीड टू डू सो मच ब्रांडिंग बिकॉज यू ऑलरेडी इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट अर्लियर. ठीक है, सो हियर यस यू विल डू एडवर्टीजमेंट. या एडवर्टीजमेंट आप करोगे बट एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. So somehow it is also reducing the overall cost of the advertising and marketing. ठीक है, बिकॉज हमारा जो टारगेट मार्केट है वो लगभग सेम ही है. जो हम सोप जिसको भी बेच रहे हैं वो लगभग वही सेम होगा. हाँ, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव टू टारगेट. अगर हम सस्ता कोई प्रोडक्ट लेकर आए तो हम अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट टेक्निक बदल लेंगे हम अपना. ठीक है, नए चीज से, नए तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं बट एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं. क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट वन इज lower labor and overhead cost. Lower labor and overhead cost. Lower labor and overhead cost. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास सोप बनाने की मशीनरी प्रेजेंट है ना, आपके पास लेबर प्रेजेंट है, फैक्ट्री में लेबर भी है आपके पास और आपके पास मशीनरी भी है. बस आपको क्या करना है, उस सोप में इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना है जिसके ऊपर आपने R&D कर लिया होगा. ठीक है, तो अब आपके पास मशीनरी है जो सोप बनाती है और आपके पास लेबर भी है जिनको सोप बनाने का नॉलेज है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सेसिव ट्रेनिंग और एक्सेसिव आपको कंसर्न दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है. कई बार आपको एडिशनल लेबर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में और आपका जो है सोप प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगा. आई बात समझ में? अब बिल्कुल अगर आप एक नई कंपनी स्टार्ट करते हो और एक नए लेबर्स को रखते हो तो सबसे पहले आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नहीं? सही बात है. यहाँ पर उन लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है कि इसको कैसे प्रोड्यूस करना है. तो यू डोंट नीड टू बेसिकली बोल सकते हैं ना कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट द
laborers are able to make that product. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? मैम हेड कॉस्ट किसको बोलते हैं यहाँ पे? लो लेबर एंड हेड कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपका जैसे एडिशनल चीजें हो गई, आपका मशीनरी कॉस्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजों को हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, आपका रेंट हो गया, ये सब चीज को ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। आगे बस समझ में? किस बच्चे ने पूछा था? चलिए, ओके, आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? यस मैम। यस अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे, व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज? तो सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है कि जब हम कोई नए प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमारा फोकस और कंसर्न उस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा चला जाता है। तो समटाइम वी स्टार्टेड इग्नोरिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे कम कंसर्न दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज, ठीक है। तो प्राइस लाइनिंग जो है, मार्केटिंग टेक्निक जो है, वो डिजाइन होता है ओनली फोकसिंग ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे आर फोकसिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट वट एवर दे आर डेवलपिंग। तो समटाइम इग्नोरेंस कैन बी डन ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, उसका सेल वगैरह जो है हमने एनालाइज करना बंद कर देते हैं, है ना, तो दैट कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर जो आपका प्राइस लाइनिंग जो ये टेक्निक है, जो ये आपका मेथड है प्राइसिंग का, ये सब जो डिजाइन किया गया है वो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कंसर्न करने की बात की गई है। फीचर्स वगैरह के बारे में ये ज्यादा नहीं बोलते हैं। और सेकंड चीज है कि देयर इज बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द ओल्डर प्रोडक्ट। तो ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड है क्या इसका डिसएडवांटेज? क्या चीज है कि यहाँ पर ना एक चीज जो बच्चे ने बोला था ना, दुर्गेश ने, वो चीज भी यहाँ डिसएडवांटेज है कि आपका जब कोई भी प्राइस लाइनिंग जो है ना, वो प्रोड्यूसर को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करे, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी कंपनी के साथ जुड़े। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है उन प्रोडक्ट पे जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी नजर आ गई, ऐसे तो फीचर्स आपके कम होंगे कंपैरेटिवली टू द प्रीमियम प्रोडक्ट, बट अगर उनको थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी नजर आने लगी ना कंज्यूमर्स को कि इन ये जो नेक्स्ट जो नया प्रोडक्ट है ये और इसमें और प्रीमियम प्रोडक्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, तो पीपल जो प्रीमियम प्रोडक्ट को परचेज करे थे ना, वो अचानक से शिफ्ट हो जाएंगे लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की तरफ। तो जो आपका एक्सपेंसिव और प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा इस सिस्टम में, और हो सकता है उसके कस्टमर्स जो है, नंबर ऑफ कस्टमर्स रिड्यूस जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि व्हेन दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग इट दे विल फाइंड कि हाँ इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है जब आप एडिशनल प्रोडक्ट को जब भी आप इंट्रोड्यूस करोगे लो कॉस्ट में। तो लो कॉस्ट वाले सिचुएशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाई कॉस्ट जब आप लेकर आते हो, जब आप प्रोडक्ट जब आप कोई हाई प्राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, तो ऐसे केस में हो सकता है कि लो प्राइस प्रोडक्ट कभी इग्नोर नहीं होगा, लेकिन जस्ट वाइस वर्सा सिचुएशन में आपका प्रीमियम प्रोडक्ट को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय द कस्टमर्स। आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर हुआ सबको एवरीवन? यस मैम। हाँ, there is a high chances that the premium product can be ignored because the low cost product में if they will find, if the consumer will find कि yes the whatever the price is that is very much different, like एक 10 रुपए का सोप है, एक 100 रुपए का सोप है, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे और ब्रांडेड कंपनीज होती है ना, वो कभी भी आपको हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेगी, भले उसकी क्वालिटी वो एक्सट्रीम लो नहीं करेगी जो आपके लिए हार्मफुल में कन्वर्ट हो जाए। आया समझ में? ईदर इफ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द लो कॉस्ट, तो अगर कस्टमर को ऐसा लगेगा दे विल स्टार्ट परचेजिंग द चीपर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज ओके, सो अगर ये जो सिस्टम है, ये जो आपका प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का जो सिस्टम है, इसकी वजह से हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल कि अगर आपका मार्केट ट्रेंड चेंज हो, मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा आपका, तो आपका इन्वेंट्री बहुत इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक रीजन बताती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो 10 टाइप के सोप के साथ डील कर रहा है। कितनी सोप के साथ डील कर रहा है? 10 टाइप के सोप। अब इस 10 में से वी हैव गारंटी कि हर एक में इक्वल सेल और परचेज इसका नहीं है। सेल्स भी पूरा प्रॉपर नहीं है, परचेज भी इसका पूरा प्रॉपर नहीं, हर एक कोई अलग है एक दूसरे से, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड चेंज हो गया अचानक से, या कोई न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में लेकर आ गया,
तो मे बी आपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया हो लेकिन उसका सेल अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री लॉस बहुत एक्सट्रीम है जुड़ा हुआ जब आप कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो सकता है आपसे बेहतर कोई कॉम्पिटिटर लेकर आ जाए वो प्रोडक्ट को, ठीक है, नए क्वालिटी के साथ, न्यू फीचर्स के साथ। तो ऐसे केस में आपका इन्वेंट्री इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? एक और इसमें एक और डिसएडवांटेज है, दैट इज कंफ्यूजन। बहुत एक्सट्रीम आपके कस्टमर्स के बीच में कंफ्यूजन अराइज हो सकता है क्योंकि फॉर देम इफ यू आर परचेजिंग द सोप ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो इसको डिफरेंशिएट उनको दिक्कत हो सकती है जब उनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेगा। तो कंफ्यूजन कैन बी अराइज। और अगर जो कंज्यूमर्स हैं वो अगर आपका अफोर्डेबिलिटी रेट उनका बहुत लो है तो हो सकता है कि वो लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा बोल सकते हैं ना कि आपका इंड्यूस हो सकता है, ये दैट कैन बी पॉसिबल। तो वो तो परचेज कर लेंगे, लेकिन वैसे पर्सन जो कि सारे टाइप के सोप को अफोर्ड कर सकते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली हु आर एबल टू परचेज 50 रुपीज सोप एज वेल एज 5 रुपीज सोप, तो इन दैट केस वो जो आपकी उस टाइप की जो फैमिली या फिर आपकी जो कंज्यूमर्स होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ले प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजन कैन बी अराइज। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रीवियस प्रोडक्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे बस समझ में, तो कंफ्यूजन इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कस्टमर्स के। और इलिटरेट जो कंज्यूमर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स रहते हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो सिर्फ वही चीज मैटर करेगा कि भाई काम चलना चाहिए। सो दे आर ओनली जस्ट बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। रूरल मार्केटिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पता होगा कि दे आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव बिकॉज देयर अफोर्डेबिलिटी और द प्राइस व्हाट दे कैन पे दैट इज वेरी लो। तो उनके लिए तो वो एकदम होगा, जो सस्ता होगा वही लेंगे वो, ठीक है। बट इट्स नॉट अबाउट दूस पीपल हु आर एबल टू अफोर्ड एवरी प्रोडक्ट, लाइक 5 रुपया वाला भी और 50 रुपया वाला भी। तो कंफ्यूजन कैन बी अराइज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक और चीज है कि जो कंज्यूमर जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो तुरंत से आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे ना, इफ दे विल अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट दे विल डेफिनेटली लीव द ओल्ड प्रोडक्ट। तो कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट की तरफ उनका कंसर्न बहुत हाई रहता है, तो वो ओल्ड प्रोडक्ट को छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके ओल्ड प्रोडक्ट का लॉस भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आप एक नॉर्मल एप्पल का ले लो एग्जाम्पल, जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है वो आपका लेटेस्ट वर्जन लेगा या ओल्ड वर्जन लेगा मोबाइल का? टेल मी अबाउट इट। मैम लेटेस्ट वर्जन लेगा। लेटेस्ट वर्जन लेगा। लेटेस्ट वर्जन। हाँ, exactly the same situation is here, that whenever you will introduce the new product with the better quality and तो फिर ऐसे situation में they will leave the old product and they will start consuming the newer one. So this is the disadvantages of the product line pricing. Anyone have any doubt in this topic? Anyone have any doubt in this topic? No ma'am. ठीक है, चलिए let's move toward the next type of pricing and that is price discrimination, ठीक है, या फिर differential pricing. What is the meaning of price discrimination? अच्छा, before that tell me what is the meaning of discrimination? कोई मुझे बताएगा discrimination का मतलब क्या होता है? What is the meaning of discrimination? Yes, Ankit. मैम बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव करना। Very good. Basically when we are differentiating, अगर हम एक people के term में लें, when we are differentiating the person from the another person, comparison to that they are differentiating, ठीक है। प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटी के बेस पर हम कहते हैं कि जब किसी को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है, और सेम पर्सन अगर सेम पोजीशन पे और उसको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, तो दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो हियर इट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कब अराइज होता है? आप लोग को याद हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि जब भी हम कभी एयर फ्लाइट की टिकट लेते हैं, जो मैंने आप लोग को पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जब भी हम फ्लाइट की टिकट ले रहे हैं और हमें ट्रैवल कल करना है, कब करना है? टुमारो वी हैव टू ट्रैवल, हम लोग को कहीं जाना है। तो ऐसे केस में जो उस पर्टिकुलर आपके फ्लाइट का टिकट होगा दैट विल बी इंक्रीज, लाइक 7,000 8,000 में एटलीस्ट यू हैव टू परचेज। बट वही अगर आप एक मंथ प्रायर, अगर 1 मंथ पहले अगर आप टिकट लेते हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो आपका कंपैरेटिवली कम रहता है। सही बात है? ट्रू है? यस मैम।
और इसके लिए ट्रेन में सिर्फ मैं राजधानी का एग्जांपल ले सकती हूँ, बिकॉज बाकी ट्रेन के जो भी आपके टिकट है उसका कॉस्ट फिक्स है अभी फिलहाल, ठीक है। तो डायनेमिक प्राइस अप्रोच जो है वो आपका राजधानी में भी है कि जितनी जल्दी आपको सर्विस लेना है, यानी जितनी जल्दी आपको ट्रैवल करना है और जितना लेट आप टिकट लेते हैं, ठीक है, आपको उतना ज्यादा प्राइस हाई देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड ऑफ द सप्लाई। और डिमांड में यहाँ डिफरेंस आ जाता है। कैसे? क्योंकि आपका डिमांड उस समय भी हाई है। अब जैसे मान लीजिए कि 20 लोगों को जाना है कल दिल्ली, ठीक है, कल दिल्ली जाना है 20 लोगों को, और टिकट जो है ओनली 5 टिकट्स आर प्रेजेंट इन राजधानी, तो डेफिनेटली हियर द सप्लाई इज लो एंड डिमांड इज हाई, राइट। तो जब लास्ट मोमेंट में ऐसा सिचुएशन होता है तो डायनेमिक प्राइस की वजह से जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट अपने आप हाई हो जाता है। आइए ना बात समझ में, इमरजेंसी वाले सिचुएशन में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहता है। तो यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वही है, ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है जो कंपनी यूज करती है। वो क्या करती है, दे चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन द सेलर थिंक दे कैन गेट द कस्टमर टू एग्री। तो एक तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम प्रोडक्ट को जब हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉस्ट में सेल करते हैं, तो दैट इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। Why this is happening? Because they know, the company knows that the customer is willing to pay the high price. यानी उनको पता है कि कस्टमर महंगे, मतलब अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गया, जैसे किसी को दिल्ली एकदम ट्रैवल करना इमरजेंसी है, तो वो कितना भी हाई कॉस्ट होगा वो प्रोडक्ट को, मतलब वो आपके टिकट लेकर जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि जो कस्टमर्स है वो खुद से विलिंग कर रहे हैं कि वो हाई कॉस्ट दे देंगे उस प्रोडक्ट का, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लास्ट मोमेंट में, ठीक है। उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, जैसे ट्रेन का देख लो ना, कभी भी आप वेटिंग देखना, हमेशा वेटिंग में रहता है। बहुत रेयर चांसेस होता है जब पूरा ट्रेन का सीट खाली हो, खास करके दूर वाले ट्रैवल के लिए बहुत रेयर चांसेस में होता है ना। तो यहाँ पर उसी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसके लिए जो कंपनी को बेनिफिट क्या होता है कि उनको हाई कॉस्ट में वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाते हैं। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है उसका भी मैं एक रीजन बताती हूँ। उसका एक रीजन है आपका डिमांड। सबसे पहला इसका रीजन है डिमांड, क्योंकि जब प्रोडक्ट का डिमांड हाई है तो ऐसे केस में अगर हम उसका प्राइस हाई रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर ले लेंगे, प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। और एक और इसका रीजन है कि आपका जो कस्टमर सेगमेंट, यहाँ पर कस्टमर जो है वो कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं तो आपको पता है कि ज्यादातर प्रीमियम जो पीपल हैं आजकल, तो मिडिल क्लास फैमिली, दे आर एबल टू अफोर्ड इट, तो डेफिनेटली दे विल पे, वो पे कर सकते हैं, है ना, अफोर्डेबिलिटी है उनकी। एक और चीज मैं बताऊंगी, एक और एग्जांपल लूंगी। आप लोग में से बहुत लोग ई कॉमर्स को यूज करते हैं, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यस मैम। ठीक है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एग्जाम्पल देती हूँ, एक शर्ट किसी ने पसंद किया, ठीक है, मान लीजिए दुर्गेश ने शर्ट एक लेना था, इसने पसंद किया। अब यहाँ पर कलर इसके पास 7 है। कितने कलर्स है इसके पास? 7 कलर्स का ऑप्शन है। अब 7 कलर में से आप देखिएगा कि 5 का प्राइस सेम है, मान लीजिए 1000, 5 का प्राइस सेम है, बट 2 ऐसे शर्ट के कलर्स हैं जिसका प्राइस हाई है। एक का 800 है, मतलब एक का 1800 है और एक का 2000 है। इस तरीके से प्राइस हाई है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट तो सारे सेम है, तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर डिमांड, ठीक है। अब जैसे ब्लैक शर्ट बहुत ज्यादा सेल होता है तो उसका डिमांड ऑल टाइम हाई है, तो जो कस्टमर्स जो है ना, जो ब्लैक को बहुत पसंद करते हैं, वो खरीदेंगे ही हाई प्राइस में। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, समटाइम बिकॉज ऑफ द स्टाइल। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दिस इज हैपनिंग विद द मोबाइल फोन एज वेल। ये मोबाइल फोन्स में भी होता है कि 1000 रुपए कॉस्ट जो है आपके कलर के हिसाब से महंगा होता है कि नहीं? ये बात होता है ना। सो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज ऑल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके अलावा आपका इमेज एक होता है, इमेज भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको पता है कि जब आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई कीजिएगा तो भी वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। जैसे अभी कॉस्मेटिक्स में शुगर इज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड, अभी एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली टू लैक्मे एंड कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांड्स। वी आर एबल टू सी whatever they are selling that is of the high price, but the people are purchasing it. सही बात है ना, खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दे लिटरली लाइक दैट प्रोडक्ट और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके।
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, दैट इज नोन एज, इसको यहाँ पर याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल प्राइसिंग, या फिर आपका प्राइस डिफरेंशिएशन। दीज ऑल टर्म्स आर सेम। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अब कंपनी क्या क्या बेसिस पर प्राइस को चार्ज करती है, तो मैंने ऐसे आपको बता दिया लेमन लैंग्वेज में, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। पहला रीजन है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, इसी के अंडर में आता जाएगा, लिखते चलो सारे बच्चे लिखिए, एवरीवन राइट अबाउट इट। चलिए, सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। ये बेसिस है जिस बेसिस पर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल प्राइसिंग को सेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, so different group of people pays different prices for the same kind of product on the basis of segment belong to। तो ये ज्यादातर देखना आप गवर्नमेंट ये अप्रोच को यूज करती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग में। अगर एग्जांपल देखिए तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर सी जो है दैट कैन वेरी फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी। अलग अलग आप देखिएगा कास्ट के हिसाब से दे आर चार्जिंग द प्राइस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। ट्रू, सही बात है? यस मैम। जनरल ओबीसी दे आर चार्जिंग द सेम और इक्वल प्राइस, फॉर ईडब्ल्यूएस और फॉर द पीएच और फॉर द एससी एंड एसटीज they are taking low price. Sometimes females are also basically come under this category, right? So here this customer segment pricing is based on the customer type कि कौन से community और caste से वो belong करते हैं। तो कई बार ये जो है ये approach कंपनी यूज करती है, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट यूज करती है, क्योंकि द मेन रीजन इज फॉर द सोशल वेल्थ। तो सोशल वेलफेयर के अंदर वो बेसिकली इस अप्रोच को यूज करती है, बिकॉज फॉर देम हु इज देयर इन द एक्सप्लॉयटेटिव सेगमेंट दे जस्ट नीड टू push more or motivate more to basically give the government examination. So that is somehow ये customer segment pricing है। क्लियर होगी बात, समझ में आया कि that is totally related with which type of customer they are. So according to that the preferences are given by the company to them. Clear? Yes, ma'am. फॉर्म का फॉर्मेट सबके लिए सेम है, फॉर्म का फॉर्मेट सबके लिए सेम है, फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस सबके लिए सेम है। सही बात है, प्रोसेस भी सेम होता है, आपको उसमें अपना डिटेल लिखना ही है, आपको अपना फोटो, पिक्चर, सिग्नेचर सब डालना ही है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ ऑल द पीपल। जो भी वो फॉर्म को फिल करेगा सेम प्रोसेस होगा, सेम डिटेल्स चाहिए, और उसके अलावा आपका बोल सकते हैं प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपका जो आपकी जॉब लगेगी वो भी सेम होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए पीओ का फॉर्म निकलता है, आईबीपीएस का फॉर्म निकल रहा है, पीओ का फॉर्म है, तो सबके लिए सेम है वैकेंसी। क्लियर है ना? लेकिन क्या वैरी कर रहा है, तो दैट इज प्राइस, दैट इज द फी ऑफ फॉर्म। क्लियर होगी बात, समझ में आया? तो फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। So according to the customer segmentation grouping or according to the caste, sometimes government and some companies are giving preference to the people. क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रिच पुअर वाला भी थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर। So I guess this point is clear. रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट वाला भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेगमेंट है ना। तो कहाँ पर है वो, रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, या रूरल पीपल, अर्बन पीपल, रिच पीपल, पुअर पीपल, ठीक है। द पीपल हु बिलोंग्स टू द SC, STs और द पीपल हु बिलोंग्स टू द अनरिजर्व्ड और OBC। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ठीक है। Yes. The next one is image pricing. The next one is image pricing. Image pricing. ठीक है। अब इमेज प्राइसिंग क्या है कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं दे आर चार्जिंग द डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम काइंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन इमेज। ठीक है, अपनी इमेज के बेसिस पे क्या होता है कि कई बार वो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो अलग अलग चार्ज करती है, ठीक है। सो क्यों, और ये ज्यादातर आपका क्लोथिंग और कॉस्मेटिक्स वाले ब्रांड ज्यादातर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पे जब आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उस पर आपको डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है या कम प्राइस पे मिल रहा है,
फिर जब आप आगे कुछ महीने बाद उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो वो आपको एमआरपी पे मिल रहा है. So why this is happening? Because of the image of that brand is very reputed in the market. The goodwill of the product या brand is very high. So consumers are not willing to pay the price at the discounted rate, but they are ready to purchase that product on MRP. ठीक है, and maximum retail price even they are ready to purchase the product. So that is image pricing. This point is clear? This point is clear? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the next type. ये सारे बेसिस है जिस बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग. प्रोडक्ट फॉर्म फॉर्म प्राइसिंग. ठीक है. तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग का मतलब क्या है? जो डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज होते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स पे ऑफ द सेम प्रोडक्ट. जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो प्राइस है सेम टाइप ऑफ कार मे बी वैरी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड एड ऑन फीचर्स. तो सेम टाइप के मॉडल का भी प्राइस जो है कई बार वैरी कर जाता है, जो मैंने बताया था आपको कलर के बेसिस पर. ठीक है, थोड़ा बहुत एड ऑन, अगर एक आध भी फीचर एड ऑन है तो उस बेसिस पर. तो दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, यानी प्रोडक्ट टाइप है. और उसमें एक और चीज है कि प्राइस इसलिए भी वैरी कर रहा है बिकॉज आपने एक आध उसमें एड ऑन फीचर है या फिर बिकॉज ऑफ द कलर डिमांड बहुत ज्यादा हाई है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लैक कलर के कार होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली टू द अदर कलर. ट्रू और नॉट? सही बात है ना? यस मैम. ब्लैक कलर का कार महंगा होता है. एग्जैक्टली. चलिए नेक्स्ट वन इज लोकेशन प्राइसिंग. अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो ब्रेड कितने लोग खरीदते हो ये बताओ? सब्जी तो तुम लोग खरीदते हो, मुझे पता लग गया था कि तुम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स परचेज करते हो, बट ब्रेड कितने लोग परचेज करते हो? हाँ, तो आई गेस चलो गुड, घर में सब लोग कम से कम काम करते हैं, ये अच्छी बात है. तो आप लोगों ने जब भी ब्रेड का पैकेट कहीं देखा होगा, क्योंकि सब लोग वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वाला देखते हैं. आजकल तो लिखा होता है बेस्ट बिफोर दिस एज और इतना, तो चलो ठीक है. कभी नोटिस किया वहां एक कॉलम रहता है जिसमें लिखा होता है इन बिहार इतना, आउट ऑफ बिहार इतना. नोटिस किया है? यस मैम. यस मैम. क्या है ना नोटिस? ठीक है, तो दैट इज लोकेशन प्राइसिंग. सो समहाउ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका कहाँ पर बेस्ड है और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है वो भी मैटर करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे. जैसे एग्जांपल के लिए अगर बिहार में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा है, यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, मान लीजिए मॉरिश का या फिर सुधा का, आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पर इसका प्लांट है. सही बात है. अब ऐसे केस में इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है विद इन बिहार दैट इज वेरी लो एज कंपेरिजन टू व्हेन दे विल सेंड और व्हेन दे विल ट्रांसपोर्ट दिस प्रोडक्ट टू द आउटसाइड टू द अनदर स्टेट. सही बात है. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बिल्कुल वैरी कर जाता है, आपका हैंडलिंग कॉस्ट बिल्कुल वैरी करता है जब आप उसी प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे सेल कर रहे हो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. तो ऐसे केस में हम लोकेशन की प्रेफरेंस के बेसिस पर जो है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो कि सेम विद इन द स्टेट बन रहा है, कई बार उसका कॉस्ट उस स्टेट के लिए लो होता है और बाकी दूसरे स्टेट में जहां वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके लिए वो हाई होता है. अगर मैं एग्जांपल आपको लोकेशन प्रेफरेंस, तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर. एक और होता है लोकेशन प्रेफरेंस कि आपका जो आपका लोकेशन है वो डिफिकल्ट एरियाज है या हाईली एलिवेटेड एरियाज है या फिर आपका प्लेन एरिया है. जैसे कि अगर आप कहीं पर भी, जैसे आप कभी नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो असम थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से बेहतर हो गया है क्योंकि असम जो है वही असम के बेसिस पर ही हम दूसरे जगह पे मूव ऑन कर पाते हैं, है ना, दूसरी जगह पे हम घूम पाते हैं, जा पाते हैं. तो वो एक हब है. तो उसको छोड़ अगर आप मिजोरम चले जाओ, मिजोरम में आपको यहाँ के कंपैरेटिवली बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव मिलेंगे, चाहे वो एसेसरीज हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो. वो इसीलिए क्योंकि वहां तक उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत हाई कॉस्ट लेते हैं आपके ड्राइवर्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट. So in that situation, the cost of product is ultimately high. आ रही है ना बात समझ में? लेकिन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के साथ ये सिचुएशन नहीं होता है. कई जगह पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के साथ ये सिचुएशन नहीं है. मैगी वहां भी 10 रुपए का ही मिलेगा, ठीक है ना. लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो वैरी कर जाता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द एरियाज, लाइक प्लेन है, हिली एरियाज है, ठीक है. तो इस वजह से, या फिर आप देखो अंडमान निकोबार देख लो, बिल्कुल वो आइलैंड है, तो वो बिल्कुल उस वहां पर भी आपके कुछ प्रोडक्ट काफी हाई प्राइस में, बिकॉज वहां तक पहुंचाना ही बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट को.
So जो companies हैं, they charge different prices for the same product on the basis of location. ठीक है, और लोकेशन के अलावा ना एक और चीज होता है. अच्छा, इसका एग्जांपल हम मूवी थिएटर का भी ले सकते हैं. जैसे मूवी थिएटर का एग्जांपल ले लो, तुम लोग सिनेपोलिस जाते होंगे तो देखते हो उसका प्राइस काफी एक्सपेंसिव रहता है ना, उसके टिकट का प्राइस एक्सपेंसिव. अभी वही चीज मुझे देखो, यहाँ मुझे और नहीं पता कहाँ थिएटर है, लेकिन अगर कहीं और देख लो एग्जाम्पल में, जो थोड़ा सा पटना से हटकर कोई भी अगर थिएटर है तो वो थोड़ा लो एक्सपेंसिव रहेगा. सही बात है? यस मैम. क्योंकि प्रेफरेंस जो कस्टमर्स है वो सिनेपोलिस का ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दैट पर्टिकुलर थिएटर जो बिल्कुल ही आपका बाईपास में है या फिर बिल्कुल पटना से बाहर के एरिया में है ना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आपकी जो प्राइस है दैट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन फॉर द सेम प्रोडक्ट. क्लियर? समझ में आया? एक और नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टाइम प्राइसिंग. तो टाइम प्राइसिंग का मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड. जैसे अभी वुलन कपड़े का बहुत डिमांड था, नवंबर टू फरवरी वुलन कपड़े का बहुत डिमांड था क्योंकि वो उस समय सीजन था, ठंड थी, हमें वुलन कपड़ों की जरूरत थी, राइट? So the price of that product is high at that time when the people require that product. But वही समर में वुलन तो एक तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा और उसका कॉस्ट भी लो हो जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंट टाइम पे अगर उसका ऑफ सीजन किसी प्रोडक्ट का रहता है तो उसका कॉस्ट लो हो जाता है. आ रही बात समझ में? सो दिस इज नोन एज टाइम प्राइसिंग. ठीक है, इसका एग्जांपल ना हम एग से भी ले सकते हैं. जो एग है ठंड के टाइम पे उसका डिमांड बढ़ जाता है तो उसका कॉस्ट हाई रहता है, लेकिन जैसे ही अगर आप नोटिस करना कि गर्मियों में उतना डिमांड हाई नहीं रहता तो प्राइस भी उसका 1-2 रुपए कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो दिस इज अबाउट द ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन वाला कॉन्सेप्ट. क्लियर है? यस एवरीवन? यस मैम. ओके, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर. बेसिस कितना मैंने कराया है? एक है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, इमेज प्राइसिंग, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, लोकेशन प्राइसिंग एंड टाइम प्राइसिंग. सो दीज आर द बेसिस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर एवरीवन? Yes ma'am. Okay, so see you all in the next class. Anyone have any doubt in any of the topics? No ma'am. Okay. Thank you ma'am.